स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट है सोशल साइंस, चैप्टर 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो गया। इसके फिल इन द ब्लैंक्स और गिव रीज़न आपको मैंने करवा दिया। आज आपके आएंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। बड़े आंसर हैं जो आपको ध्यान से सुनने हैं और फिर आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में लिखना है और उसको लर्न करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। नंबर 1, which characteristics has India incorporated in its constitution from the constitutions of our nations? आंसर है इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अमेरिका फंडामेंटल राइट्स, ब्रिटेन पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आयरलैंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, फ्रांस रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। 5 रशिया है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है इन अमेंडमेंट पॉसिबल इन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ? यस, अमेंडमेंट इज पॉसिबल इन कॉन्स्टिट्यूशन। द बिल फॉर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी presented in both the houses, that is in Lok Sabha and in Rajya Sabha. If the bill gets through with the majority of 2 and 3 members and the president sign, it can be brought into force by law. So far 78 amendments have been done in the constitution following this procedure. Next है number 3, people belonging to which different religions live in our nation, which different religious festivals are celebrated. In our nation, people belonging to the following religion live: Hindu, Islam, Sikh, Jain, Parsi, Christian, Jew and Buddha. The festivals celebrated in these different religions are as following. In Hindu religion, Shivratri, Janmashtami, Dashera and Diwali. In Islam religion, Ramzan, Eid और Muharram. In Sikh religion, Guru Nanak Jayanti और Lodi. In Jain religion, Mahavir Jayanti, Payushan. In Parsi religion, Patel. In Christianity, Christmas. In Buddha religion, Buddha Purnima. Next question है what is called democratic administration system? आंसर है in this system elections are held every 5 years. Citizens of 18 years and above exercise their franchise and elected their representatives. They get opportunities in being representative irrespective of their religion, caste, of gender and participate in the administrative system, carrying out their responsibilities. This system is called democratic administrative system. आंसर है 1 और 2 सेंटेंस के। Which are the foundation pillars of our constitution? आंसर है डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रिटी are the 4 foundation pillars of our constitution. Number 2, the salient features of the constitutions of which different countries have been incorporated in our constitution? Answer है in our constitution the salient features of constitution of the following countries have been incorporated: Britain, Ireland, France, America. What is secularism? Secularism means considering all religions equal. No sect of religion is to be given political recognition. This policy is known as secularity. What is republic? Republic means the government which acquires power to rule from people directly or indirectly. It is not the rule of one person or of one family, but the rule of people. Next है how many organs of central government are there? Which are they? There are 3 organs of the central government: parliament, executive body and 3 judiciary. Next question 6 है which different functions do the organs of central government carry out?
तो आंसर है पार्लियामेंट फ्रेम्स लॉज, मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव दिस लॉज एंड जुडिशरी मेक्स दिस लॉज implemented and imparts justice. Next है क्वेश्चन नंबर 7, what is called the soul of Indian Constitution? आंसर है फंडामेंटल राइट्स इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट नंबर 8, who represented Anglo India Society and Parsi community while framing our constitution? While framing our constitution, Frank Anthony had represented Anglo India Society and Mr. H.P. Modi represented the Parsi community. What is preble? What is mentioned in it? The answer है preble means the introductory note of our constitution, basic principles of administration, goals and ideals are mentioned in it. Next 10 number, which are the 4 salient features of the Indian Constitution? The 4 salient features of the Indian Constitution are parliamentary administrative system, secularism, number 3 republicanism and number 4 union state. ये आपके क्या हो गए 1 और 2 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर हो गए. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, वो आपको मैं करवा देती हूँ. नंबर ए और बी के ऑप्शन देख लो. नंबर 1 है ए के ऑप्शन 1 दिसंबर 26 1929. नंबर 2 है जनवरी 26 1950. नंबर 3 अगस्त 15 1947. नंबर 4 नवंबर 26 1949. और बी के ऑप्शन है ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. नंबर बी है सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे फॉर द फर्स्ट टाइम. नंबर सी है कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एट लाहौर. नंबर डी है इंडिया गोट इंडिपेंडेंस एंड नंबर ई है एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी ए का जो नंबर 1 है दिसंबर 26 1929 उसका आंसर आएगा सी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एट लाहौर. नंबर 2 है जनवरी 26 1950 तो उसका आंसर आएगा 2 का ई एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट नंबर 3 है अगस्त 15 1947 तो आंसर आएगा उसका डी इंडिया गोट इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट नंबर 4 है नवंबर 26 1949 तो आंसर आएगा ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ये क्या हो गया आपका मैच द फॉलोइंग. अभी नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग भी आपको मैं करवा देती हूँ, वो आप कर लो ठीक है. नंबर ए और बी के ऑप्शन बता देती हूँ पहले. नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू. नंबर 2 है राजेंद्र प्रसाद. नंबर 3 है भीमराव अंबेडकर. नंबर 4 है डॉक्टर जीवराज मेहता. अभी बी के ऑप्शन सुनो. फर्स्ट राज्यपाल ऑफ इंडिया. नंबर बी है चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सी है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. डी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ई फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. तो जवाहरलाल नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, उसका आंसर आएगा सी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जवाहरलाल नेहरू क्या थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो क्या थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. डी आएगा उसका आंसर. नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो उसका आंसर आएगा बी चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 4 डॉक्टर जीवराज मेहता क्या आएगा उसका आंसर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के. ठीक है, ये आपका क्या हो गया मैच द फॉलोइंग. अभी नेक्स्ट भी मैच द फॉलोइंग है वो करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिल इन द ब्लैंक्स और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करवाऊँगी. ए और बी के ऑप्शन सुनो. नंबर 1 डेमोक्रेसी. नंबर 2 सेक्युलरिज्म. नंबर 3 यूनियन स्टेट. नंबर 4 रिपब्लिक. अभी बी के ऑप्शन है ए सुप्रीमेसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. बी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज हायर. नंबर सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स एवरी 5 years. डी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द रिलीजन्स. और ई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल.
अभी नंबर 1 डेमोक्रेसी का क्या आएगा आंसर? नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स एवरी 5 years। नंबर 2 सेक्युलरिज्म, तो उसका आंसर आएगा डी, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द रिलीजियंस। नेक्स्ट नंबर 3 यूनियन स्टेट, तो यूनियन स्टेट का क्या आएगा? 3 का आंसर आएगा ए, सुप्रीमेसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 4 रिपब्लिक, रिपब्लिक का आंसर आएगा ई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। ये क्या हो गया आपका? मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हुआ। अभी ये आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में लिखना है और लर्न करना है, और इसके बाद आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करवाऊंगी। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू।